السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابھی میں نے جو سبجیکٹ شیئر کیا آپ سے، وہ بھی ذرا دیکھیے گا۔ کھانے پینے کا، صحت مند رہنے کا، اس میں بہت زیادہ کمیاں ہوں گی، کیونکہ پرفیکٹنس تو نہیں ہے میرے پاس، لیکن اپنی حد تک میں نے بہت کچھ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کیسے صحت مند، سمارٹ اور توانا ہو سکتے ہیں۔ ضرور شیئر کیجیے گا مجھ سے، دیکھیے گا بھی ضرور، شیئر بھی کیجیے گا، مجھے بھی بتائیے گا۔ اب میرا جو ٹاپک ہے وہ ہارٹ یا دل کے متعلق ہے۔ دل کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اس وقت تازہ بات یہ ہے کہ میرے ایک انتہائی عزیز دوست کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا۔ آل اے سڈن اٹیک ہوا، اور وہ قریبی پرائیویٹ چھوٹے سے کلینک میں بھی نہ پہنچ سکا، اور واقعی جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے وہ انسان کو وہاں تک لے جانے کی مہلت ہی نہیں دیتا۔ چند منٹوں میں، چند سیکنڈوں میں وہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جانا سبھی نہیں ہے، لیکن ایک افسوس رہ جاتا ہے۔ جب کسی کو ہارٹ اٹیک ہو تو وہ ہاسپٹل میں پہنچ جائے 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، اور وہ بھی انٹیکٹ ہو، وہ بھی زندہ ہو، تو ڈاکٹر کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بچا ہوا ہے، اب باقی ساری گیم ہاسپٹل پر، اس کی فیسلٹیز پر، اس کے ڈاکٹروں پر ہے۔ ادروائز قدرت نے اسے اتنا موقع دے دیا ہے کہ اف ہی کین سروائیو ہی کین۔ نہیں تو جن کی مہلت ختم ہوتی ہے، دے ٹیک جسٹ فیو سیکنڈ، جسٹ فیو منٹ۔ تو ہارٹ اٹیک بہت بڑی بیماری ہے، اس پر بہت ساری میں نے باتیں کرنی چاہتا ہوں میں، اور یہ میرا ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ میں میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے جب میں اناٹمی، فزیالوجی اور ایز اے ہول جتنا میرا محدود علم تھا، اس کے مطابق اپنے ٹیچروں سے، اپنے استاذہ کرام سے یہ سوال کرتا تھا کہ یہ انسان کو کون چلا رہا ہے، برین؟ جبکہ بظاہر سارا اردو ادب انسانی پرسنالٹی کے لیے، آپ دیکھ لیں، شاعری دیکھ لیں، ادب دیکھ لیں، باتیں دیکھ لیں، تو دل کا ذکر بڑا مقدم آتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی دل کا بہت ذکر ہوا ہے۔ میں یہ باتیں آپ سے تفصیل سے کرنا چاہتا ہوں جتنا مجھے علم ہے، اور میں اس وقت بہت خوش ہوں کہ وہ سوال جو میں نے 50 سال سے زیادہ اپنے آپ سے، اپنی کتابوں سے، اپنے استاذہ اکرام سے کیے تھے، اللہ رب قدوس نے مجھے ایک راہ دے دی ہے۔ مجھے سمجھ آئی ہے کہ دل کیا ہے اور یہ کیسے سارا نظام ہے۔ اس میں سے بے شمار علم میں سے چند ذرے اب میرے پاس بھی ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو جیسے میں نے اپنی یہ تھم نیل میں ڈالا ہے، سر ورک میں ڈالا ہے کہ واٹس ہارٹ،
इट इज़ जस्ट ए पंप और मास्टर ऑफ ऑल। क्या ये दिल जो है वो बस इंसानी जिस्म में एक पंप है जो पानी की मोटर की तरह सारे जिस्म को खून सप्लाई कर रहा है, और उसकी वजह से सारे जिस्म को खून की ऑक्सीजन की रसाई होती है, वहाँ से ये वेस्ट प्रोडक्ट लेता है, गुर्दे उसको निकाल देते हैं। इज़ दैट ऑल? नो, दैट्स नॉट ऑल। तो मैं आपसे सारी तफसील जो मुझे आती है मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। इसके कई एस्पेक्ट हैं। अब तो हम जो दिल की थोड़ी सी मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। दिल में 4 खाने हैं। आप ऐसे समझिए कि दिल एक 2 मंजिला मकान है। इसकी निचली मंजिल जो है इसमें 2 वेंट्रिकल हैं, और इसके ऊपर वाली मंजिल में 2 एट्रियास। जो ऊपर वाली मंजिल है वो बड़ी थिन और नाजुक सी है, और जो नीचे वाली मंजिल है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, जिनको वेंट्रिकल कहते हैं। मैं इसकी बहुत ज़्यादा एनाटॉमी में नहीं जाऊंगा, बस मैं एक थोड़ी सी बात शेयर करना चाहता हूँ कि जब रब्बे कुद्दूस हमें इस दुनिया में लाने का फैसला फरमा देते हैं, और हमारे माँ बाप की झोली हमारे जिस्म हमारी हस्ती के साथ भर देते हैं, तो हम अपनी माँ की पेट में हमारा जिस्म परवरिश पाने लगता है। तो उस वक़्त हमारी उम्र जब सिर्फ 8 हफ्ते की होती है, सिर्फ 8 हफ्ते की, या आप यूँ कह लें कि 2 महीने की होती है, तो हमारा दिल एक मुकम्मल सूरत अख्तियार कर लेता है और वो धड़कना शुरू कर देता है। उस खून के लोथड़े में खून की नौलियाँ बननी शुरू हो जाती हैं, और दिल छोटा सा, पता नहीं क्या उसकी शक्ल होगी, जस्ट इमेजिन कीजिएगा। तो वो सारे दिल को जैसे जैसे उसकी खून की नालियाँ, जैसे जैसे उसका दिल उसका जिस्म डेवलप हो रहा है, वो हर जगह पर उसे खून पहुँचाने के लिए धड़कता है। वो अपना जो पंप का एक्शन है वो उस वक्त शुरू कर चुका होता है। बड़ा दुख हुआ जब किसी को एनफोर्स भाषण करानी पड़ी, तो उसकी माँ सिसक पड़ी। उसने कहा कि हाँ, वाकई मेरा बच्चा तो 3 महीने का भी नहीं था, बहुत छोटा था, एक लोथड़ा ही था, लेकिन उसका दिल तो धड़क रहा था। कैसे उसका दिल स्टॉप हुआ होगा, कैसे वो बात खत्म हुई। एक उदासी की लहर सारे जिस्म में दौड़ गई। दिल कैसे धड़कता है? दिल के एट्रिया में अल्लाह रब्बे कुद्दूस ने एक छोटी सी बैटरी लगाई हुई है, जिसको हम एस्से नोड कहते हैं। और वो एस्से नोड इतनी ताकतवर बैटरी है कि जब हमारी उम्र सिर्फ 2 महीने थी तो उसने पहला स्पार्क दिया था। उसमें इलेक्ट्रिकल करंट है 1 मिली वाट से भी कम। 1 वाट होता है ना, तो उससे भी बहुत 0.8 है जितनी उसमें इलेक्ट्रिसिटी है। और वो
पौने सेकंड में एक करंट मारता है जिससे दिल को अगली बातें हैं जिससे दिल सुकर दौड़ फैलता है, तो वो अपना पंप का एक्शन शुरू कर देता है। खून नालियों में जाता है, खून नालियों में वापस आता है और दिल हमारी पूरी उम्र हमारी इतनी खिदमत करता है। हम सो भी जाते हैं, हम भाग भी रहे होते हैं, हम दौड़ भी रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बे कुद्दूस ने वो किस मटीरियल के साथ हमारी बैटरी बनाई हुई है, ऐसे लोड बनाया हुआ है कि जो बिल्कुल नहीं थकता। पूरी उम्र वो बैटरी चलती रहती है। एक उस बैटरी का साइज़ जो है वो एक मसूर की दाल के ज़र्रे से भी छोटी होती है ना। इतनी ज़बरदस्त पावरफुल बैटरी जो कि एक सेकंड में शॉट मारती रहती है और 100 साल से ज़्यादा तक उसमें कोई खराबी नहीं पैदा होती। और वो बैटरी जिसने उस मासूम सी रूह बच्चे की, जब उसकी 8 हफ्ते की उम्र थी, तब उसकी खून की आधी बनी हुई आधी ना बनी हुई नालियों को धड़काया था, उसके जिस्म को धड़काया था। वो पूरा इंसान, चाहे वो 100 किलो का है, चाहे वो 60 किलो का है, उसके पूरे जिस्म में जिसकी नालियाँ 50,000 मील के बराबर हैं, उन सारी नालियों में वो दिल खून का एक बहाव, एक नदी, एक समंदर की तरह इन 50,000 नालियों में खून फिरता रहता है, जिसके पीछे दिल का जिसके वेंट्रिकल के मसल्स बहुत मजबूत होते हैं, उसमें वाल्व लगे हुए हैं, नो रिटर्न वाल्व लगे हुए हैं। खून दिल एक दफ़ा दिल खून को बाहर धकेलता है शरीयान आज़म में, औठा में, वो फिर आर्टरीज में फिर फड़ाकर वेन्स बनकर, फिर वो वेन्स बनकर फिर वो फेफड़ों में जा दिल में आकर, फिर फेफड़ों में जाकर सफाई करके फिर दिल में आकर फिर वो सारे जिस्म में अपना सफ़र शुरू कर देता है। तो उसकी सनाई, उसकी खालकियत, रब्बे कुद्दूस का सिस्टम, दैट्स ग्रेट। तो मैं इससे थोड़ी बहुत बातें करना चाहता हूँ कि दिल क्या है, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि दिल सिर्फ ये एक पंप है, या हमने सारी उम्र जो बातें की कि दिल बहुत उदास है, या मैं तो आज मेरे दिल में बहुत सुकून है, या रब्बे कुद्दूस का वो फरमाने आली शान कि जब कोई भी इंसान परेशान हो, तकलीफ़ में हो, उसको चैन ना मिल रहा हो, तो रब्बे कुद्दूस की अज़ीम पैगाम जो इंसान है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि दिलों को इत्मीनान, जब कोई भी इंसान शदीद अदम इत्मीनान का शिकार हुआ हो, तो उस वक़्त उसको कुरान पाक की ये आयत मुबारक सामने आए कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सुनो अल्लाह का ज़िक्र। जो मैंने उसका मफ़हूम, इसका तर्जमा किया हुआ है, वो साहिब इल्म और जिन्होंने तर्जमा किया, जिन्होंने तशरीह की, उनके मुकाबले में मेरा इल्म ज़ीरो है, कुछ भी नहीं। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक मुसलमान हूँ, अरबी मुझे भी थोड़ी सी शुद्ध है। मैं इसका तर्जमा ऐसे ही करता हूँ जैसे एक अजीम हाकम, एक बादशाह ये डांट कर कहता है ना कि सुनो, तो अल्लाह का मतलब यही है, सुनो, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि
अगर सुकून नसीब होगा तुम्हारे दिलों को, तो रब कुद्दूस की ज़ात मुबारक फरमा रही है कि मेरे ही ज़िक्र से, मेरे ही आगे सर झुकाकर, मेरी ही बात मानकर, मेरे ही रास्ते पर आकर तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। तो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, मैं आज भी फरियाद कर रहा हूँ रब कुद्दूस की बारगाह कुदसिया में कि वो मेरे दिल पर हमेशा, मेरे दिल को सुकून में रखे और मेरे दिल को अपने ज़िक्र से कभी भी महरूम ना रखे और मेरा दिल ईमान से भरा रहे जैसे, और मेरे दिल की स्याहियाँ ख़त्म हो जाएं। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं खासी वीडियो बन गई है, तो आप ज़रूर देखिएगा, मुझे कमेंट्स दीजिएगा, मुझे मशवरा दीजिएगा। अगली बातें हम और करेंगे इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़। अपने दिल की हिफाजत कीजिएगा दोनों तरफ से। एक तो ये है कि अपने दिल को, अपने दिल की खून की नालियों का महफूज रखिएगा ताकि उनमें खून का बहाव अच्छा रहे, ताकि हम उससे हार्ट अटैक से बचा सकें और उसको शैतान का घर भी ना बनने दीजिएगा। उसे अल्लाह पाक की तरफ रुजू करने वाला दिल बना दीजिएगा, कल्ब सलीम बना दीजिएगा। ये मेरी दुआ है अपने लिए भी और आपके लिए भी। खुश रहें, आफियत में रहें। खुदा हाफिज़।